بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضرات، دنیا اور قیامت کے جو معاملات ہیں ان میں ویسے تو کئی لحاظ سے فرق ہے اور فرق بھی بے شمار ہیں، کئی پہلوؤں سے، کئی طریقوں سے، کئی انداز سے دنیا اور آخرت کے معاملات میں بہت زیادہ فرق ہیں۔ وہ جو فرق ہیں ان میں ایک جو پہلو جس کا دنیا اور آخرت کے معاملات میں فرق ہے وہ ہے معاملات کا تصفیہ کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ دنیا اور آخرت کا بالکل ہی فرق ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی سے کوئی پیسے لیتا ہے، مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ پیسے واپس کرے۔ اگر زمین چھینتا ہے، یہی مطالبہ ہوتا ہے زمین واپس کرے، یا جو بھی کسی سے وہ کوئی ہتھیاتا ہے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہمارا زیور ہے، یہ چاندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھین کے لے گئے ہیں، یہ وہی واپس کرے۔ قیامت کے معاملات جو ہیں یہ اس سے الگ ہیں۔ دنیا کے معاملات میں پھر ایک بات یہ ہے کہ کئی ایسے تصفیہ طلب امور ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کام کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، کتنا کیا ہے، کون کر گیا ہے، یہ کس نے ظلم ڈایا ہے۔ دنیا کے معاملات بڑے ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ قیامت کے جو معاملات ہیں، جو تصفیہ طلب امور ہیں قیامت کے دن، وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تمام معاملات جو ہوں گے یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ہر قسم کا وہ انسان جس نے چھپ چھپ کے کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ انسان جس نے بیس بدل کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ ایسا کوئی کام جو اس نے دنیا سے چھپ کے اندھیرے میں اکیلے میں کیا تھا، تنہائی میں کیا تھا، آج ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، آؤ فلاں کام کریں، کہاں کسی کو پتا ہے، اکیلے ہیں، وہ سارے کے سارے کام جو ہوں گے یہ انسانوں کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا یہ سارے معاملات کھول کے ان کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی یہ جو میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے، دنیا میں ایسے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں جو دو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن انسان پریشان ہو جائے گا، اور میں تو سمجھتا تھا میرا گواہ ہی کوئی نہیں، میں نے تو اپنا مقدمہ ہائی کورٹ سے جیت لیا، فلاں کورٹ سے دی، سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، کیوں؟ گواہی نہیں تھا جی اس کے پاس کوئی۔ اور دیکھیں اللہ کا فضل، اب دکان میرے نام ہو گئی ہے حالانکہ یہ اس کی ہے، اس لیے گواہ کوئی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے گا، اور میں تو سمجھتا تھا گواہی کوئی نہیں، یہ تو گواہ اتنے زیادہ نکلے ہیں، ایک کی گواہی ٹھکرائی جا سکتی ہے، دو کی ٹھکرائی جا سکتی ہے، یہاں تو گواہی بے شمار ہے۔ وہ مکان جس میں نے چھپ کے ایک کام کیا تھا،
उसकी चारों दीवारें, उसका छत और उसकी एक एक ईंट हजारों की तादाद में अलग अलग इंसान के खिलाफ गवाही दे रही हो। वो फर्श जिसके ऊपर बैठ के उसने वो जुल्म किया था, जिस कमरे में छुप के किया था, उस कमरे का फर्श और उस फर्श का रेत और सीमेंट का जर्रा जर्रा इंसान के खिलाफ, इतनी गवाहियां इंसान के खिलाफ। इंसान परेशान हो जाएगा। मैंने तो क़यामत के दिन ये मामला नहीं, गवाहियां भी बेशुमार होंगी, तमाम छुपे हुए उमूर जो होंगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इंसानों, तुमने जो अपने ख्याल में गुनाह छुप के किए थे ना, सारे लाके तुम्हारे सामने रख देंगे कि ये तूने ये किया, ये किया, ये किया। वो दुनिया थी जहां तुम छुप गए, ये आखिरत है। वो इंसानों की बादशाही थी जिसमें तुम छुप गए। आर्जी तौर पे हमने तुम्हें वो बादशाही दुनिया में रखी थी, तौबा का दरवाजा रखा था। आज अल्लाह अकेले की बादशाही है, मालिक यौमिद्दीन। आज अकेला मैं ही बादशाह हूं, मेरी बादशाहत में कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता। हर चीज खोल के तुम्हारे सामने रख दी जाए। तमाम किस्म के मुजरम भी हाजिर हो जाएंगे और तमाम किस्म के अच्छे और बुरे अमाल जो होंगे, सारे के सारे, हर किस्म की दो नंबरी होगी जो वो सामने जाहिर हो जाएगी इंसान की। दुनिया में एक तो ये है, इंसान छुपा सकता है, जुर्म और मुजरम छुप जाता है। क़यामत के दिन ये दोनों नहीं छुपेगा। दुनिया में होता है मामला, जो किसी से लिया है वही उसको वापस करो। जमीन है तो जमीन, सोना है तो सोने, रुपए हैं तो रुपए। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ये चीजें काम नहीं आएंगी, और क़यामत के दिन वहां सिक्का और है। ये दुनिया का सिक्का है, ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरे जवाहरात जो है, ये माल दौलत, ये दुनिया का सिक्का चलता है। यहां डॉलर चलते हैं, जिन डॉलरों के इवज बड़े बड़े हुक्मरान अपना दीन और ईमान बेच के, कुफर का साथ दे के अहले ईमान के ऊपर जुल्म करते हैं। ये दुनिया के सिक्के हैं। हमारे यहां क़यामत के दिन ये सिक्का नहीं चलता। क़यामत के दिन एक और किस्म का सिक्का चलता है। एक दिन सही मुस्लिम हदीस की किताब में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क़यामत के दिन सिक्का कौन सा चलता है। अचानक एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, ए सहाबा बताओ मुझे, अतदरून मल मुफलिसु, बताओ मुझे कौन इंसान कल्लाश और फकीर और ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा मुफलिस बंदा बताओ कौन है। सहाबा ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, हम तो उसी को मुफलिस कहते हैं जिसके पास दुनिया में मल्ला दिरहम लहू वला मता। या रसूल अल्लाह, जिसके पास कोई माल दौलत दिरमो दिनार नहीं होता, हम तो उसी को समझते हैं। ये कल्लाश आदमी मुफलिस है, कुछ नहीं इसके पास, ये खाली हाथ है, बिल्कुल वेला हो चुका है ये। और मैं, तुम इसको समझते हो जो वेला हो चुका है। मैं मोहम्मद इसको नहीं कहता। मेरे नजदीक इंसान जब भी सोचता है, अल्लाह की कसम इंसान को पता नहीं, इंसान की सोच ही दुनिया के लिए रह गई है। ये गरीब है चूंकि दुनिया का माल नहीं, ये फलां है चूंकि दुनिया में इसकी, सारी दुनिया से बाहर इंसान निकलता है। क्यों नहीं सोचता कि एक ऐसा भी जहान आने वाला है, वहां की अमीरी के बारे में भी कभी इंसान सोच ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, फरमाया तुम दुनिया के माल दौलत के बारे में समझते हो फला माड़ा और कमजोर और बिल्कुल खालियात, कल्लाश है। फरमाया मैं मोहम्मद नहीं कहता, मैं ये कहता हूं मेरे नजदीक इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती कद शतम हाज़ा व याती कद शतम हाज़ा व कज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। और मैं तुम्हें बताता हूं कि हम असल मुफलिस वो है, आया जिसे कहते हैं ना असल कामयाब वो है जिसे जहन्नम से बचा के जन्नत में भेज दिया। असल की मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन मुफलिस हो जाए, जिसके पास कुछ ना हो। क़यामत के दिन जो सिक्का आना है जिसके पास वहां कुछ नहीं। असल गरीब तो वो आदमी है
यहां तो बड़े बड़े अमीर ये सोना ये चांदी छोड़ के अकेले ही 10-12 गज का कफन लेके, और किसी को वो भी नसीब नहीं हुआ, कफन ही लेके गए हैं। किस किस्म की इमारत है ये? क्या सोना चांदी के ढेर और फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी मार्केटें ले कोई साथ गया है? फकीरों की तरह खाली हाथ ही गए। असल फकीर वो है क़यामत के दिन जो इंसान अल्लाह के पास आए और अल्लाह को कहे, या अल्लाह मैंने ये नमाजें पढ़ी हैं, ये लो अल्लाह इनको तोल लो। अल्लाह मैंने ये रोजे रखे हैं, अल्लाह इनको तोल लो। ये देख लो पूरे हैं। अल्लाह ये मैंने ज़कातें दी हैं, अल्लाह इनको तोल लो। अल्लाह ये नामे अमाल मेरा। फरमाया वो तुलाने के लिए अल्लाह के पास आया, नमाजें भी लेके आया, और नमाजें भी ऐसी थी जो कबूल थी, सही सुन्नत के मुताबिक वो नमाजें पढ़ी गई थी। वो नमाजें भी लेके आया, रोजे भी लेके आया, ज़कातें भी लेके आया। अभी तुलने लगा, अचानक दूसरी तरफ से कितने ही बंदे आ गए, कहने लगे यार शहनशाह कायनात, आज तेरा दरबार है। दुनिया के दरबार में तो हमें कोई हक और इंसाफ नहीं मिला, तेरा दरबार ऐसा है जिसमें कभी किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होता है। ए अल्लाह ये वो बंदा है, वायाती कद शतमहाजा। अल्लाह ये दुनिया में जिसको चाहता था गालियां दे लेता था, मुझे भी गाली दी, इसको 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 इसको। अल्लाह दुनिया में हमारी कोई नहीं सुनता था। अल्लाह तू तो सबका साझा रब है। अल्लाह तेरा ही दरबार है जहां से कोई मायूस नहीं जाता। इसे पूछो कि हमें किस वजह से गालियां दी, क्यों हमें जलील किया करता था दुनिया में। वाकज़फ़हाज़ा। और कई बंदे वो आ जाएंगे जिनको इसने ये कहा होगा, किसी को जो मुंह में आ गया कह दिया, किसी के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए इसने, जिस ऐसे इल्जाम के जिनके ऊपर अल्लाह की हद लगती है। इसने ये भी कई इंसानों को कह दिया था, वो भी सारे के सारे लोग हाजिर हो गए। ए अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करो, दुनिया में तो कोई सुनता ही नहीं था। अल्लाह तू दुनिया का ये दुनिया के हाकिमों की तरह नहीं है, तू तो इंसाफ करने वाला है, आदिल है। तू किस ए अल्लाह तू अदल और इंसाफ करने वाला है। दो बंदे, तीसरा देखा एक और बंदा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और बंदा, बल्कि कई बंदे आ गए, कहने लगे या अल्लाह ये हमारा माल खा गया था। ये तीसरा एक गिरोह आ गया, एक गिरोह और आ गया जो कहने लगा या अल्लाह ये बंदा जो है जो नमाजें तुलाने के लिए लेके आया है, ये सदका और खैरात ज़कात और रोजे लेके आया। अल्लाह यही बंदा है कि दुनिया में इसने मुझे कई दफा मारा। पूछने वाला कितने इंसानों का इसने खून बहाया था, दुनिया की अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला। ए अल्लाह हमें इंसाफ दिया जाए। और कई बंदे ऐसे, या अल्लाह इसने हमारा खून तो नहीं बहाया था, हमें मारा बहुत था, जलील बहुत किया था। अल्लाह उनको इंसाफ के कुटहरे में कर, मैं इंसाफ करूंगा। इसकी नमाजें और इसके रोजे और इसकी ज़कातें जो हैं, ये सब की सब जो तोलाने के लिए ये लेके आया है, ये है एक तरफ, और इसके जुल्म दूसरी तरफ है, ना इंसाफियां हैं। आज ये है, आज क़यामत के दिन सिक्का जो चलता है ये नेकी का सिक्का चलता है, नेकियां वापस की जाएंगी। फायूता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाजें पढ़ के जिसने और बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े रोजे रखे थे, ये इंसानों के साथ जो जुल्म ज्यादती किया, सारी नमाजें और सारे रोजे और ज़कातें वो ले गए, खाली हाथ रह गया। एक तो यह है क़यामत के दिन जो इंसाफ होगा ये नेकियों का इंसाफ होगा, ये दुनिया का माल दौलत वहां नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये होने वाला है, फरमाया जमीन अपने जितने ये ज़खारफ हैं, ये सोना और चांदियां, ये सारी की सारी बाहर निकाल के, जिस तरह मीनार होते हैं, मीनारों की तरह ये जमीन सोना और चांदी बाहर ऐसे अपने जिस तरह डंडे ऊपर या मीनार होते हैं, बड़े बड़े सुतूनों की तरह ये बाहर निकाल देगी। और ले लो, कोई लेने वाला ही नहीं होगा। इसलिए कि आखिरत के दिन सोने और चांदी का जो है ये सिक्का चलता ही नहीं होगा। सामने नजर आ रहे होंगे ये सोने और चांदी के मीनार बड़े बड़े, कोई लेगा इसलिए नहीं कि उनको कौन पूछता है, यहां तो सिक्का और चलता है।
फरमाया वो नमाजें और रोजे जो हैं और ज़कातें और सदका खैरात सारे का सारा वो लोग ही ले गए, इसके पास अब कुछ नहीं रहा। अब एक और सिक्का भी चलता है क़यामत के दिन, वो ये है जब इसने सारा कुछ इसके पास से चला गया नेकियां, कई बंदे अभी भी थे खड़े, कहने लगे हमारे साथ भी इंसाफ अभी होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये कहा जाएगा इसके पास नेकियां तो खत्म हो गई हैं, और लाओ अपने गुनाह लाओ जितने हैं तुम्हारे, गुनाह लेके सारे इसके सर डाल दिए जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो ये बंदा मुफलस है, आज इसके पास एक नेकी नहीं, बुराइयां ही बुराई, खाली हाथ हो गया। असल मुफलस तो वो है, मैं ये गरीब आदमी है, इस वक्त तुम कह सकते हो कि ये खाली हाथ और कल्लाश इंसान हो गया है। जब उसके पास बुराइयां ही बुराइयां हैं, जुल्म ही जुल्म इसके पास हैं। फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। मैं उनकी बुराइयां लेके इसको दे के खाली हाथ कोई नेकी है ही नहीं, बुराइयां ही बुराइयां पकड़ के जहन्नम में फेंक दिया जाए। काश ये बंदा दुनिया में समझ जाता, काश उस वक्त फिर इंसान कहेगा ऐ मेरी जानो मैंने क्या जुल्म किया, वो जो सोने और चांदी और कारोबार और जमीन और ये वो सब तो दुनिया में रह गया, वहां मुझे क्यों समझ नहीं आई। हजरात क्या आज दुनिया में उलमा जो लोग हैं, क्या ये हदीसें मोहम्मद रसूलुल्लाह की लोगों को पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहे। कल क़यामत के दिन कोई इंसान किस तरीके से पछताएगा, उसका पछताना किस काम है। दुनिया में आज अगर पछता ले, आज मामला अगर तय कर ले, तो उसको अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। आज उसको चाहिए कि दुनिया में सारे मामलात क्लियर करके दुनिया से जब जाए, इस तरीके से जाए जिसका मां के पेट से आया था, कोई गुनाह नहीं था, तमाम ही मामलात दुनिया में सारे हल करके जाए। फिर ये सिर्फ ये नहीं, बल्कि आम तौर पे होता है, हम कई दफा हमारे मुलाजम होते हैं, घर में मुलाजमात काम करने वाली होती हैं, उस वक्त तो हमें फिर पूरा हक मिल जाता है ना, हम जो चाहे इनको कह दें, जिस नाम से चाहे इनको पुकार लें। हम ऐसे उनको ऐसे ऐसे गंदे नाम उनके रखते हैं, नौकरानियों के और मुलाजमों के, और कारोबार करने वाले हमारे मुलाजम उनका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़रबा ममलूकहू उकीमा मन ज़रबा ममलूकहू जुल्मन, फरमाया जिसने अपने किसी इस मुलाजम के साथ जुल्म और ज्यादती की है, क़यामत के दिन उकीद मिनहू, फरमाया क़यामत के दिन उससे, क़यामत के दिन उसको जो कुछ उसने कहा होगा अल्लाह उसको किसास दिलवाएगा। उसने उसको कहा होगा अगर तू चल बदकारा निकल यहां से, अब इसको अगर वो बदकार नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इसको चूंकि इसने इल्जाम लगाया है, क़यामत के दिन उसको खड़ा करके फिर वही 80 कोड़े जो हैं उसने उसको जुल्मन ये बहतान लगाया क़यामत के दिन इंसान को। और कई दफा इंसान जो होता है अपने मुंह से जो आता है कहता जाता है। हज़रात याद रखें इस बात को, इस दुनिया में जो इंसान है, ये अल्लाह ने दुनिया ऐसे नहीं बनाई है, ये मुफ्त काम नहीं चल रहा, ये लाएबीन नहीं, मजाक नहीं है। यहां इंसान के आमाल लिखे जा रहे हैं, इंसान के कदम लिखे जा रहे हैं, सांस लिखे जा रहे हैं। और यही तो वजह होती है कि सांस लिखने वाला फरिश्ता अचानक ही कहता है बस जितने सांस थे ये पूरे हो गए, जो अंदर गया है ये बाहर नहीं आएगा, तो टाइम खत्म हो गया। इंसानों के सांस लिखे जा रहे हैं, इंसानों के अकवाल लिखे, जो मुंह से आता है, ये लिखने वाले फरिश्ते अल्लाह के, ये मुलाजम अल्लाह ने फजूल में लगाए हुए हैं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, इंसानों तुम समझते हो हमने तुमने बेमकसद पैदा किया है और तुमने हमारे पास नहीं आना। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम जुल्म और ज्यादती करके, मार दाड़ करके, जो जिसका माल और इज्जत के ऊपर हमला करके माल छीन के दुनिया से आ जाओ। तुम क्या समझते हो तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है? तुम्हें है एक पकड़ने वाला। फतअलल्लाहु मलिकुल हक फतअलल्लाहु मलिकुल हक।
याद रखना एक हकीकी बादशाह है जो सब कुछ अदल और इंसाफ, वो हक का बादशाह है और क़यामत के दिन हक हक करने वाला है। जुल्म को अलग करके हक और इंसाफ की बादशाही कायम कर देगा, बताएगा ये इसका हक है, ये इसका हक है। जो जालिम है उसको उसके जुल्म का बदला दिया जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब ममलूकहू बरीयन मिम्मा काला उकीमा अलैहिल हद। फरमाया दुनिया में अगर कोई किसी इंसान को ऐसे ही कह देता ना अपने मुंह से, ये बंदा ऐसा और ऐसा है, फरमाया अगर वो ऐसा नहीं तो क़यामत के दिन तमाम इंसानियत के सामने उसको वहां हदें लगाई जाएगी। तमाम इंसानों के सामने उसको जो जो उसने जुल्म किया होगा सामने खड़ा किया जाए। कई इंसान ऐसे होंगे दुनिया में, उन्होंने जुल्म और ज्यादती करके कई इंसानों की जमीनें जो होंगी ये हथिया ली होंगी, अपने नाम करवा ली होंगी, कई कई हाथ बेच दी होंगी, उससे भी पैसे ले लिए, उससे भी एवं अपने पास से नाजायज ही जी मैंने सुप्रीम कोर्ट से मैं जी वो स्टे ऑर्डर ले आया हूं और वो मैंने मुकदमा किया और जी मेरे हक में नाजायज और जुल्म। ओ लोगो, ओ भाइयों, ये जुल्म और ज्यादतियां जो है ये दुनिया में इंसानों से छुप सकती हैं, अल्लाह से कुछ नहीं छुप सकता। अल्लाह को पता है ये किसका हक है। अल्लाह को तो जर्रे जर्रे और इससे भी नीचे अगर कोई चीज है अल्लाह को तो उसका भी पता है ये क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, दुनिया में अगर किसी ने जुल्म किसी के साथ किया होगा, एक गिठ के बराबर भी जमीन जो है, एक बालिश के बराबर जमीन किसी की उसने हथियाई होगी, या जितनी भी जमीन होगी। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हाजमे वाले लोग हैं, लोगों के कई कई मरले और कई कई किले और मुरब्बे भी खा गए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को जिसने किसी की जमीन दबाई होगी नाजायज तरीके से, फरमाया इसको मैदान माशर में नहीं लाया जाएगा। मैदान माशर से पहले एक जमीन होगी, जितनी दुनिया में जमीन इसने किसी की नाजायज संभाली होगी वहां इसको जमीन दी जाएगी और कहा जाएगा ये सारी की सारी जमीन जो है, इसकी पूरी की पूरी जो मट्टी है 7 जमीनों तक ये मट्टी बाहर निकालो, ये लो पकड़ो कसी। पर मैं 7 जमीनों तक उसकी जमीन को उसको कहा जाएगा खोदो, ये मट्टी बाहर निकालो, इसके लिए तुम लड़े थे। ये मुकदमात नाजायज तौर पे जो तुमने किए, ये दुकानें, ये स्टे ऑर्डर, ये दुनिया के बड़े बड़े वो इसके लिए किए थे ना। अब ये 7 जमीनों तक तुमने इसको खोदना है नीचे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू भी कहू मिन सब अर्जीना, फरमाया वो सारा 7 जमीनों तक का जितना ढेर होगा बाहर निकालेगा। जब निकालेगा बाहर, उसके बाद वो सारा का सारा उसके सर के ऊपर डाल दिया, तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाए। ओ लोगों, और दुनिया में इंसाफ कर लो, जो किसी का हक है उसको दे दो, दुनिया में किसी का हक मारने की कोशिश ना करो। ये जमीनें, ये मकानात, ये कारखाने जो है, क़यामत के दिन इतनी जमीनें 7 जमीनों तक खोद के इसको गले में डालनी पड़ेगी। अपनी बहनों का जो हक है उनको दो। ये ना कहो जी मेरा वालिद मेरे नाम ये कारखाना कर गया है, मैं नहीं इनको देता, जी मेरा अब्बा जी कर गया। अब्बे का जुल्म जो है, याद रखें, जिस तरह अब्बे ने एक जुल्म किया है, जुल्म की चीज तुम्हारे लिए भी हराम है। कोई बंदा किसी को डाके से कोई चीज देता है तो जिसको माल मिले वो उसके लिए भी हराम ही है। कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी बहन का हिस्सा, अपने भाइयों का, फलां का जो है मैंने मार के इसको क़यामत के दिन मैं आजाद, सारे के सारे कारखाने उसके सामने, कायनात के रब की कसम, ये एक एक जर्रा, एक एक इंच क़यामत के दिन सामने आने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे का सारा जो होगा वो तौक उसके गले में डाल दिया जाएगा। गले में डाल के फिर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह मैदान माशर में लोग खड़े होंगे, ये सारा बोझ उठा के फिर वो 7 जमीनों का उठा के, फरमाया फिर इसको मैदान माशर में लाया जाएगा। ये मैदान माशर में जब आएगा, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुसीबा बिही, फरमाया उसको क़यामत के दिन वो जमीन जो जुल्म ज्यादती से इसने की होगी उसको उखाड़ के अपने ऊपर तौक की शक्ल में लाया होगा। खुसीबा बिही यौमल क़ियामत इला सभी अर्ज़ीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको फिर ऐसा होगा, वो अपनी जमीन के नीचे जो उसने फरमाया जमीन के नीचे वो दब जाएगा इंसान।
इतनी जमीन, इतने 7 जमीनों तक ये बहनों के हिस्से, ये कारखाने, ये मकानात, ये कोठियां, ये लोगों का माल और दौलत, ये नाजायज तौर पे किए हुए जुल्म और ज्यादती के फैसले जो हैं, फरमाया उसमें खुशिबा भी ही, फरमाया उसके नीचे वो धनस जाएगा, वो सारा उसके ऊपर आ जाएगा। मैदान माशर में जिस तरह कब्र बन जाती है, दोबारा एक किस्म की उसकी कब्र वहां मैदान माशर में उसकी बन जाएगी, और वो नीचे सांस ले रहा होगा और सारी जमीनें साथ की साथ उसके ऊपर होंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी फैसला नहीं होगा, इंसानों के दरमियान फैसला हुआ होगा। फरमाया इस इंसान का यही हाल होगा, हत्ता युक्जा बैन अन्नास, फरमाया यहां तक के लोगों के दरमियान, तमाम इंसानियत के दरमियान फैसला हो जाए, और सबसे आखिर में इसका फैसला होगा, ये अपनी जमीन के नीचे दबा हुआ होगा, रहेगा ऐसे ही। और अल्लाह अगर क़यामत के दिन हज़रात अपनी औलाद की खातर, अपने माल की खातर, अपनी कोठियों, कारों और इन कारों के तेल की खातर, और इन पजेरों की खातर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, जो इनकी खातर, ये बड़े बड़े प्राडो टाइप जो बड़ी बड़ी इनके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। ये चंद दिन की प्राडो हैं, इनके बाद ये सारी की सारी प्राडो के नीचे इंसान दबा हुआ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह क़यामत के दिन किसी को सबसे हल्का अजाब दे, सजा अगर दे, इन्ना अहवाना अहलन नारी अजाबन, फरमाया सबसे हल्का अजाब इंसानों को, कईयों को पता है क्या होगा? फरमाया उसको जहन्नम की मल्लाहु नालैन, फरमाया उसको जहन्नम की सिर्फ 2 जूतियां पहनाई जाएंगी, सिर्फ जहन्नम की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु का यगलिल मिरजल, फरमाया उन जूतियों जहन्नम की गर्मी की वजह से वो गर्मी ऊपर पहुंचेगी, दिमाग उसका मगज इस तरीके से होगा जिस तरह हंडिया उबल रही है उसकी। ये सबसे हल्का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई आदमियों को अल्लाह बिल्कुल हल्का अजाब अल्लाह देगा। क्या? फरमाया इसको जहन्नम के जो तस्मे, जो बूट बांधते हैं हम, तस्मे जो होते हैं, जहन्नम के 2 तस्मे जो हैं ये इनके पांव में बांध दिए जाएं। जहन्नम की आग के 2 तस्मे उसके जब गले में उसके पांव में जब बांधे जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी गर्मी की वजह से दिमाग जो होगा ये हंडिया की तरह उबलेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कईयों को अल्लाह और भी हल्का अजाब देगा। फरमाया ये जो पांव है, पांव इसका जो तलवा है, ये ऊंची जगह होती है दरमियान में, आगे और पीछे से तो जमीन के साथ लगता है, ये जो हिस्सा जिसमें ये थोड़ी सी जगह कर्व होता है, ऊंची जगह होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग के 2 कोले, एक उसके दाएं पांव के नीचे, एक उसके बाएं पांव के नीचे 2 कोले रख दिए जाए बस। फरमाया 2 अंगारे जमरातान, अखमस इसको अरबी में कहते हैं कि ये ऊंची जो जगह होती है। फरमाया जहन्नम की आग के 2 अंगारे उसके दोनों पांव में एक एक करके रख दिए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह ये हकीम अरक निकालते नहीं किसी चीज का, अरक जब निकालते हैं तो वो जिस चीज का निकाल रहे होते हैं उसको जोश और उबाले देते हैं। फरमाया जिस तरीके से जोश उबाले उसको दिए जाते हैं, इसका दिमाग मगज उबलेगा उस तरीके से 2 कोलों की वजह से। और दुनिया के माल के लिए कैसा अक्लमंद वो इंसान है, और दुनिया का माल जो उसके पास हमेशा रहना है कि नहीं, उसको नहीं पता, ये हमेशा नहीं रहेगा। उसके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले, और दुनिया की गर्मी मुझे पहुंच ना जाए, इसमें एसी और फलां और ये लगाते लगाते नाजायज और हराम तरीके के कमाए हुए क़यामत की गर्मी को इंसान भूल जाए। किस कदर बेवकूफ इंसान है कि दुनिया से पता नहीं। ये दुनिया की इम्तहानगाह जो है, याद रखें, दुनिया में पेपर होते हैं ना, इम्तहान होता है, उसमें एक टाइम होता है कि 3 घंटे हैं इसके 4 घंटे हैं, इसके इतने घंटे हैं। क़यामत के दिन याद रखें, ये दुनिया जो है इस तरीके से इम्तहानगाह नहीं है। इसमें यह नहीं कि इंसानों तुम्हें 3 घंटे दिए जाते हैं, किसी वक्त भी सुपरिंटेंडेंट जो है मौत का फरिश्ता आके कह सकता है 3 घंटे नहीं, उठो तेरा वक्त आ गया, उठो उठो उठो, किसी वक्त भी उठा। इसमें कोई 3 घंटे किसी को नहीं दिए गए। अचानक किसी को कह सकता है बस
ना जवानी को हम देखते हैं, ना बुढ़ापे को देखते हैं, ना मर्द है ना औरत है, उठो यहां से चलो बस। इस दुनिया के इस इम्तिहानगाह से इंसान इस जुल्म लेके जाए क़यामत के दिन, और सबसे हल्का अजाब भी अगर उसको दे दिया जाए तो ये है कि दिमाग जो है उसका ये खौले और ये उबले, उसका दिमाग जो है मगज उसका उबाले खाए हड्डिया की तरह। किस कदर बेवकूफ इंसान है जो क़यामत की सजाओं को भूल जाए दुनिया के चंद वक्त के आर्जी तौर पे नफे और फायदे और मजे के लिए इंसान। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो वो है जिसके दोनों पांवों पे उसके नीचे एक एक कोयला रखा गया है। फरमाया कई इंसानों को बकायदा तौर पे पूरा जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, पूरे टखनों तक, कईयों को घुटनों तक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कईयों को आग चिमट जाएगी, उसके गले तक चिमटी जाएगी, उतरेगी नहीं आग, जिस्म जलते जाएंगे जलते जाएंगे जलते जाएंगे, जिस्म खत्म ही नहीं होगा। बड़े बड़े पहाड़ की तरह इंसान का जिस्म हो जाएगा, और फिर वो जल जल के कोले उसके नीचे गिरेंगे, फिर वो बारीक हो जाएगा, सारे आग लगी रहेगी जिस तरह के किसी गंधक को आग लगी होती है। बारीक जब हो जाएगा फिर मोटा कर दिया जाएगा, फिर उसके कोयले नीचे गिरते रहेंगे, फिर मोटा फिर मोटा। उस जहन्नम के लिए इंसान दुनिया के लोगों यहां दुनिया में तस्वीया कर लो, जिन जिन का किसी ने हक देना है यहां हक दे के जाए। क़यामत के दिन अगर कोई जहन्नम की सजा सह सकता है तो फिर ये काम कर ले। कुरान अल्लाह पाक फरमाते हैं फमा अस्बरहुम अलन नारी, वो लोगों मुझे बड़ा हैरानगी होती है और तुम कैसे जहन्नम के ऊपर सब्र कर लेते हो कि ठीक है हमें जहन्नम मंजूर है। वो लोगों कैसे जुल्म कर ले, अल्लाह के अल्फाज फमा अस्बरहुम अलन नारी, वो लोगों मैं हैरान हूं कि तुम कैसे जहन्नम को कबूल कर लेते हो दुनिया की चंद आरजी चीजों के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लोगों मेरी बात याद रखो, मैं तुम्हें कहता हूं दुनिया में जो जिसका हक है फरमाया उसको दे दे उस वक्त से पहले कि फिर हक अगर देना भी चाहे तो अगले कहें बस खत्म। कई दफा कई इंसान आपने नहीं देखा दुनिया से जब जा रहे होते हैं तो जुबान से कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं चलता, सारी जिंदगी हमें पछतावा रहता है कि अब्बा जी कुछ कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, समझ नहीं आई इसकी। अब्बा हक देना चाहता है, कारखाना बहनों को वापस करना चाहता है, कोठियां वापस करना चाहता है, लोगों का माल वापस देना चाहता है, ऊपर से कह दिया जाता है कि तेरी जुबान जो है हमने इतने साल तुझको जुबान दी थी कि बोल के को, आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तेरा टाइम खत्म हो गया। आपने नहीं सुना लोग कहते हैं अब्बा जी कुछ कहते थे, अम्मा कुछ कहती थी, अब जब कहने का वक्त था उस वक्त तो अब्बे और अम्मा ने कुछ कहा नहीं, अब जब वक्त गुजर गया तो उस वक्त जुबान हिलाने का कोई फायदा नहीं। हज़रात किसी को पता नहीं कि इंसान के साथ क्या हो जाना है कब, इसलिए इंसान को तौबा इसको कहती हैं। फौरी तौर पे बात सुन के फौरी तौर पे इंसान अमल कर ले, फौरी तौर पे इस जुमा से सुन के जिसकी बात है यहीं से फैसला करके जाए मैंने अपनी बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, अजीजों का, जिसका मैंने हक देना है, जाते ही पता नहीं आज रात को ही ना फैसला हो जाए, रात को ये बात ना हो जाए। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ये कहीं इसलिए इंसान को चाहिए फौरी तौर पे उनका हक हो जाए जी वापस करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो उस दिन के आने से पहले पहले जो है तुम दुनिया में फलियतहल्ललहु, फरमाया दुनिया में इंसानों से माफी मांग लो और दुनिया से जाते से पहले पहले इंसानों का हक वापस कर जो, चंगी बात है। फिर एक वक्त आएगा तुम हक देना चाहोगे, हक देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, सब कारखाने, मकाने, जमीनें, दुकानें, बैंक बैलेंस, रुपए, सोना, चांदी सब तो दुनिया में रह गया होगा, क़यामत के दिन तो कबूल ही कोई नहीं करेगा। क़यामत के दिन अगर कोई इंसान किसी को कहे, क़यामत के दिन आज दुनिया और क़यामत का जो एक फर्क है, क़यामत के दिन अगर कोई इंसान कहे मैं पूरी की पूरी जमीन तुम्हें सोने की देता हूं, मेरी एक नेकी जो एक गुनाह मुझे माफ कर दो, मेरी नेकी ना लो, मेरी बढ़िया मेरी एक ही नेकी है उसकी वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूं, तुम मेरी एक नेकी ना लो, ये पूरी की पूरी जो है ये सोने की जमीन ले लो, कायनात के रब की कसम वो सोने की जमीन को नहीं लेगा, इसलिए कि क़यामत के दिन तो सोने की कदर ही कोई नहीं हो।
सब बेकदरा हो जाएगा, एक कदर नेकी की होगी बस। और दुनिया में अगर जुल्म इंसाफ किया तो यहीं उसको वापस करके जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है, इतना डरते थे नबी अलैहिस्सलाम, बावजूद इसके कि आप नबियों के इमाम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, इमाम आजम हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप जन्नत के आला दर्जे में क़यामत के दिन अल्लाह इनको देगा, मकाम महमूद अता फरमाएगा, और ये दीगर गुनाहगार इंसानों का ये क़यामत के दिन ये सिफारिश करने वाले होंगे। इतने मुकामात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा करते थे। हदीस में आता है, आपने तारीख की किताबों में है, आपने जिस वक्त गज़वे बदर होने लगी, आप सहाबा की लाइन सीधी कर रहे थे। लाइन सीधी करते करते एक सहाबी थे कबीला गजिया का ये आदमी था, सवाद बिन गजिया इसका नाम था। ये जो लाइन सीधी की थी ना, उसमें से ये थोड़ा सा आगे होके खड़ा हो गया, इसका पेट आगे था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन सीधी करते करते, आपके हाथ में एक लकड़ी थी, एक आपने कहा और चलो सवाद पीछे हो जाओ, आपने ऐसे उसको लगाया। वो आदमी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसे मारा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन इसका बदला फिर आप क्या दुनिया में बदला दे दें मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फौरी तौर पे कहने लगा, या रसूलुल्लाह, आप दुनिया में अदल और इंसाफ करने आए हैं, आपने तो मेरे साथ मारा, मुझे इतनी तकलीफ हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात को, अल्लाह लाखों रहमतें हों तेरे नबी के ऊपर। फौरी तौर पे इमाम अल अंबिया उसके सामने खड़े हो गए, फरमाया, ले लो मुझसे बदला, क़यामत के दिन ना दुनिया में कर लो जो काम। वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना फिक्र था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तो एक छड़ी ऐसे लग गई उसको, हम तो पता नहीं क्या क्या इंसानों का मार जाते हैं और कैसे कैसे जुल्म और ज्यादती करवा, कितने इंसानों को मरवा देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। कैसी थाने में हम लोगों को डराते फिरते हैं, थाने में मेरे साथ ये है, ऐसी ठुकाई कराऊंगा, देखना क़यामत के दिन जब ठुकाई रब करेगा पता चल जाएगा इंसान। आपने फरमाया, मुझे बदला ले लो, तुम वो छड़ी ये लो, पकड़ लो। सलाम है उस नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पे, फरमाया, ये लो छड़ी, मुझे मार लो मेरे पेट पे, दुनिया में लापला कर लो। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो पेट नंगा है, आपने कमीज पहनी हुई है, आप भी अपने पेट से कमीज उठाओ फिर मैं मारूंगा। फरमाया, ये लो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अल्लाह से डरने वाले से, ऐसे मुत्तकी थे, पूरी कायनात में अल्लाह के सारी मखलूक में रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कोई आपसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे अपना कपड़ा पेट से उठाया, जब उठाया उसके हाथ में वो छड़ी थी, इस उठाने की बात, उन्हें छड़ी को जमीन पे पकड़ के फेंक के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पेट को चूम लिया। या रसूलुल्लाह, मुझे पता था आप क़यामत के दिन बदले से बड़ा खाइफ रहते हैं, मैंने इसलिए कहा, और इसी वजह से आपने पेट से कपड़ा ऊपर किया, आप अल्लाह से बहुत डरने। और फरमाया, ये तुमने पेट चूम लिया। या रसूलुल्लाह, पता नहीं अभी जंग होगी, पता नहीं मर जाना है, मैं चाहता था जाते जाते मैं कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पेट चूम के चला जाऊं। ये उसका अमल है, ये सहाबी का अमल है, और ये रसूलुल्लाह का अमल है कि अपने आप को पेश कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जा रहे थे जिस वक्त फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का जब हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे जा रहे थे। आप हुनैन की तरफ, ताइफ की तरफ, औतास की तरफ आगे जा, आप ऊंटनी के ऊपर बैठे हुए थे। एक और आदमी, हदीस में उसका नाम नहीं लिखा, अबू रहम उसको कहते हैं, लेकिन असल नाम का नहीं पता उसको। ये आदमी अपनी ऊंटनी के ऊपर बैठा हुआ था। उस दौर में बड़े जूते बड़े राफ बना करते थे, बड़े सख्त और करख्त किस्म के। उस वक्त कौन सी बाटा और सरवस की दुकानें थी, ये तो बेचारे जो होता है ऐसे चमड़ा पकड़ा और पांव में डाल ऐसे कर ले। एक और ये अबू रहम जो सहाबी था,
ये इसकी ऊंटनी नबी अलैहिस्सलाम की ऊंटनी से जरा आगे निकलने लगी। जब आगे निकलने लगी, इसकी जूती बड़ी करख्त और सख्त थी, किनारे निकले हुए थे चमड़े के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, उसकी नबी अलैहिस्सलाम का ध्यान सीधा था, ये पास से तेजी से जब गुजरा, इसकी जूती सख्त थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिंडली थी उसको चीरती हुई। जब अचानक ही नबी अलैहिस्सलाम का ध्यान सामने था, आप जंग में जा रहे थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने तो सीधा ध्यान किया हुआ था, अचानक जब वो लगा तो यकदम नबी अलैहिस्सलाम से बेखुदी में ऐसे हो गया, जिस तरह हमें कोई होता फौरी तौर पे हम हाथ रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया, उसकी पिंडली को जोर से, वो तो सोटी जो थी ना, वो छड़ी लग गई। अब नबी अलैहिस्सलाम को तो खून निकल आया था, छिल गई थी आपकी पिंडली। वो परेशान हो गया कि मुझसे क्या हो गया। ये आदमी रात का वक्त हुआ तो ये परेशान रहने लगा सारा दिन कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पिंडली को मैंने छील दिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या होना है। रात का जब ये वक्त हुआ तो ये वहां खैमे में नहीं बैठा, ऊंट लेके ना ऊंट को चराने के बहाने से निकल गया दूर, हालांकि इसकी बारी भी नहीं थी। ये जब वापस आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू रहम कहां गया है? कि नहीं या रसूलल्लाह, वो ऊंट चराने गया हुआ था, चरा के वापस आ गया। मैं बुलाओ ना इसको, मैं इधर आओ ना। जिसने आपकी पिंडली को चीर दिया हुआ था और बेखुदी में जिसको एक छड़ी लग गई थी, इतना डरते थे क़यामत के दिन के बदले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैं अबू रहम, वो यार तूने वो पिंडली ऐसे अचानक, मुझे पता नहीं चला, तुझे छड़ी लग गई। सलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, अपनी तकलीफ को भूल गए और उसको कहा मुझे छड़ी लग गई है तुझको। मैं ये बदले में अगर ये बकरियां कुछ लेके मुझे माफ कर दो तुम यार। सलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, अल्लाह की रहमतें हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। मैं दुनिया में मैंने तेरे साथ छड़ी लग गई है, अपनी तकलीफ को भूल गए, मैं ये ले लो, मुझे माफ कर देना। कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं तो खुद डर रहा था, मैं कहीं मेरे बारे में अल्लाह नाराज ही ना हो जाए कि तुमने नबी को तकलीफ पहुंचा दी। या रसूलल्लाह, मैं खुद अल्लाह से माफी चाहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बाज किताबों में लिखा है, इमाम इब्ने जौजी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे। हदीस में आता है, ये इनकी तारीख की किताब है, उसका नाम है तारीख उमर इब्न अल-खत्ताब, ये इस किताब का नाम है। उसमें यह है कि एक दिन हजरत उमर फारूक अपनी खिलाफत के दौर में बैठे हुए थे, आप कुछ हिसाब कर रहे थे, अचानक एक हजरात याद रखें, ये दुनिया में हम कोई हिसाब नहीं रखते, हमारे बादशाह जो होते हैं ना, कोई हिसाब नहीं, कहते हैं बादशाह के आगे क्या हिसाब, जाओ जितने मर्जिया पैसे लगा लो, जाओ जो मर्जिया कर लो, को पूछने वाला ही नहीं होता। ये उमर फारूक थे, पूरे का पूरा हिसाब जो होता था खुद चेक किया करते थे। मैं खुद चेक करूंगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, कितना माल आया, कहां गया, किसको दिया है, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ने उमर को पूछना, अल्लाह ने उमर को पूछना है, तेरे दौर में फलां जगह एक जानवर, बकरी का बच्चा और एक कुत्ता भूखा मर गया, तू कहां था, क्यों ऐसा हुआ है? हमारे हुक्मरानों को कोई पता ही नहीं है, मुल्क में क्या जुल्म और ज्यादती हो, सारा अपने अयाशी के समान बना। अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन याद रखना, ये लोग सब सुन लें, क़यामत के दिन याद रखना, ये हुक्मरान सब सामने आएंगे, अल्लाह इनके साथ जो कुछ करता है आप देख लेना, ये जुल्म और ज्यादती के पुतलों के साथ क्या कुछ होता है। ये समझते हैं अल्लाह का निजाम बेमकसद है, ये समझते हैं हमारे ऊपर अल्लाह ही नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, को पकड़ने वाला नहीं है। आप हिसाब कर रहे थे, हजरत उमर फारूक, एक आदमी आया बाहर से, बद्दू आदमी था, उसने आते ही सीधा ही आके हजरत उमर को ऐसे, आप लिख रहे थे, उसने बाजू से पकड़ा और कहने लगा, उठो उठो अमीरुल मोमिनीन, फलां बंदे ने ये ज्यादती किया, उसको अभी पकड़ो, ये करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इतने परेशान हाल थे, आपके हाथ में उस वक्त एक छड़ी थी, कोड़ा था, कोड़ा। आपने गुस्से में ना, उसने जब आके आपके हाथ को, उठो जी उठो उठो, अपने कोड़े से मैं आराम से बैठ, इधर यही बात कही, आराम से बैठ, और कोड़ा उसको लग गया। अब मैं किस कदर जुल्म और ज्यादती की बात है। मैं सारा दिन अदालत लगाता हूं,
میرے پاس اس وقت آنا چاہیے. اب میں اس وقت کام کر رہا ہوں, آگے مجھے بھی ڈسٹرب کیا ہے, اور سارا جو میں سوچ رہا تھا وہ میں پریشان ہو گیا, اور مجھ سے پھر میں وہ آدمی ایسے پرے جب ہو گیا, کوڑا لگا تو جانے لگا, پھر میں واپس آؤ, میں قیامت کے دن میری شکایت تو نہیں لگاؤ گی اللہ کے سامنے کہ کوڑا تجھے لگ گیا ہے, یہ لو کوڑا پکڑ. وہ کوڑا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا, آپ نے کوڑا اسے پکڑا, پکڑو. اس نے ڈرتے ڈرتے فرمایا عمر نے جتنے زور سے مارا ہے اس سے زیادہ زور سے مار لو یہ لو. قیامت کے دن اللہ سے میں ڈرتا ہوں. دنیا کے معاملات, دنیا میں انسان پاک صاف ہو کے جائے تو بہتر ہے, ورنہ اس انسان کی کوئی خیر نہیں. قیامت کے دن معمولی سے معمولی سزا جو ہے یاد رکھے انسان نہیں جیت سکتا. اصل کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. او لوگو, یہ دنیا کا مال دولت وہیں رہ جائے گا. اصل کامیابی جو وہ ہے وہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے. لوگوں, دنیا کے سارے معاملات لین دین دنیا سے دیکھے جاؤ, قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک صاف اٹھنا تاکہ اعلان کیا جائے چلو میرے بندو ادخلو, چلو تم اور تمہارے سارے جو دیگر جنتی لوگ ہیں جنت میں جا کے عیاشیاں کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں, کسی کا بھی وہ حق ہے دنیا میں اس کو واپس کر جائے. حضرات یاد رکھیں, دنیا میں انسان اگر کو کلاش ہو کے مر جائے, سارے کا حق دے کے اس کے پاس کچھ نہ رہے, کرائے کے مکان میں اگر چلا جائے حق دے کے, اللہ کی قسم یہ بہتر سودا ہے اگر جہنم سے بچ جائے. بلکہ کرائے کے مکان بھی نہیں, اور کوئی کرائے کا مکان نہ دے, سڑک کے اوپر گلیوں میں انسان رول رول کے مر جائے لیکن ظلم نہ کیا ہو, قیامت کے دن کامیاب وہ انسان. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچ کے پاک صاف ہو کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب